Hello everyone, I'm Dr. Shafila from IGNU DOS. Welcome to session 48 of Environmental Studies. Environmental Studies is an elective paper for those who are doing graduation from IGNU, and the exam pattern for this paper would be objective. The short video sessions that we are uploading on official channel of IGNU DOS will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session 48. How many species of flora are found in India? So flora are the plants. So how many plant species are found in India? Options are 81,000, 47,000, 15,000, 41,000. See, जितना अभी तक we have explored the geographical area of India, तब तक, अब तक, how many flora species we have found? That is 47,000. ठीक है. सो जितना अभी तक जियोग्राफिकल एरिया हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं, वहां पे अभी तक हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ फ्लोरा आर फाउंड इन इंडिया? सो आंसर इज 47,000. क्लियर. सो हाउएवर जो ये है आपका 15,000 है. So this is the number of endemic species. ठीक है. So that we will cover in another question. But for now, so 47,000 species of flora are found in India. Clear? So second question is, forests and wastelands belonging to both private individuals and government are known as. So ऐसा forest या ऐसी wasteland जो किसी private individual की है या government की है, तो ऐसी forest को या wasteland को what we say? Sacred groves. So we have already covered sacred groves in I believe session 10. So you can go back to session 10 and you can see, you can learn what is sacred grove. But I will be telling you, just I will be briefing you about sacred grove now. So sacred groves are the patches of the forest जिनको protect किया जाता है because of their traditional value, their cultural value, or their the religious purpose. So कोई religious belief है, कोई cultural belief है, कोई traditional belief है. So उस point of view से those patches of the forest are protected by the local people. So sacred groves. सैक्रेड ग्रुप में आपके जो प्लांट्स हैं, ट्रीज की अगर हम बात करें, लाइक बनियन ट्री है या पीपल ट्री है, सो दे कम्स अंडर सैक्रेड ग्रुप, क्योंकि उनकी अगर कोई किसी ट्री की या किसी पैच ऑफ फॉरेस्ट की वहां पे ऐसे ट्रीज हैं जिनकी कोई लोगों का ट्रेडिशनल बिलीफ है ओवर दोज ट्रीज, या कोई रिलीजियस वैल्यू है, कोई मेडिसिनल वो है, मतलब प्रॉपर्टी है, और उन ट्रीज को, उस पैच ऑफ ट्रीज को इफ सम कम्युनिटी ऑफ पीपल दे आर प्रोटेक्टिंग, ठीक है, तो वो आपके क्या है? सैक्रेड ग्रोव्स हैं. फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू कैन गो बैक टू द सेशन 10 and you can learn more about sacred groves. So sacred groves जो हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल का नहीं है, ठीक है, वो तो अलग से ही एक पैच है जिसको उसकी स्पेशल वैल्यूज के कारण उसको प्रोटेक्ट किया जाता है. अगर हम बात करें रिजर्व्ड फॉरेस्ट की एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जो रिजर्व्ड या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं आपके, सी रिजर्व्ड आर रिजर्व्ड, ठीक है, जिनको मतलब रिजर्व, जिसमें हंटिंग अलाउड नहीं है, पोचिंग अलाउड नहीं है, ठीक है, सो वहां पे मैन मेड एक्टिविटीज आर रिस्ट्रिक्टेड. प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर रिजर्व्ड फॉरेस्ट जिनको लोकल पीपल या ट्राइबल कम्युनिटीज जो हैं दे आर प्रोटेक्टिंग, ठीक है. सो रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कई बार हम दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. रिजर्व फॉरेस्ट में आपकी जो मैनमेड एक्टिविटीज हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंस है, वो रिस्ट्रिक्टेड हैं, ठीक है. प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को ट्राइबल्स जो हैं या लोकल कम्युनिटीज हैं दे आर प्रोटेक्टिंग एंड दे कैन यूज द बेनिफिट ऑफ द फॉरेस्ट. प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में जो लोकल ट्राइब्स हैं या आपके जो लोकल कम्युनिटीज हैं हु आर प्रोटेक्टिंग दोज फॉरेस्ट, they can use the benefit of the forest, ठीक है. So protected and reserved. Then unclassed forest. So unclassed forest वो हैं जो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के हैं या गवर्नमेंट के हैं, मतलब बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट के जो हैं उनको हमने किसमें डाल दिया? आपके अनक्लास्ड फॉरेस्ट में डाल दिया, ठीक है. So the answer to this particular question is D. Next is the black bug belong to which of the following categories of fauna? So fauna is animal, ठीक है. Extinct species, those who are no more on the earth, extinct हो चुके हैं, disappeared from the earth.
rare species which are very uncommon, which are very uncommon, endemic species which are specific to a particular area, endangered species those who are on verge of extinction. ठीक है. So अगर हम बात करें ब्लैक बग की, देखो हमारे पास एक टर्म है थ्रेटेंड स्पीशीज. सो थ्रेटेंड का मतलब है दो स्पीशीज, दे कैन बी प्लांट्स, दे कैन बी एनिमल्स, दे कैन बी बर्ड्स विच आर अंडर थ्रेट. किससे उनको थ्रेट है? फ्रॉम ह्यूमन. फिर उसके बाद थ्रेटेंड कितने एक्सटेंट तक है वो, उसके हिसाब से हमने उनको अलग अलग कैटेगरी में डाला है. अगर ब्लैक बग की बात करें तो दिस इज थ्रेटेंड स्पीशी, ठीक है, नियर थ्रेटेंड स्पीशी. बट ये है क्या? दिस इज एंडेंजर्ड. दिस कम्स अंडर विच ग्रुप ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज? दिस कम्स अंडर एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज. सो ब्लैक बग, जिसको हम लोग इंडियन एंटेलोप भी बोलते हैं, सो दिस इज endangered species. Otherwise, this is near threatened species, and this comes under endangered category of endangered species. Clear? So answer to this particular question is D, and other name of black buck is Indian antelope. Next, we do have, in which of the following states a very high percentage of its forest is maintained by local community? इनमें से किस फॉरेस्ट में जो ज्यादा परसेंट ऑफ फॉरेस्ट है लोकल कम्युनिटी ही मैनेज करती है? ऑप्शंस आर जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश. सो आंसर इज अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश में मोस्ट ऑफ द जो फॉरेस्ट हैं दे आर प्रोटेक्टेड एंड मैनेज्ड बाय द लोकल पीपल, लोकल कम्युनिटीज, लोकल ट्राइब्स के ही उनको क्या कर रही है? प्रोटेक्ट करती हैं एंड मैनेज करती हैं. ठीक है. सो इसमें अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की, लाइक इसमें है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स है, या डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, या एल्पाइन्स हैं. सो दीज आर द मेजर टाइप ऑफ द फॉरेस्ट विच आर फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश. और उनको मैनेज कौन कर रहा है? लोकल कम्युनिटीज, लोकल ट्राइब उसको प्रोटेक्ट करती हैं एंड मैनेज करती हैं. एंड यस, उनका जो बेनिफिट है उसको यूज करने का राइट भी किसका है? ऑफ द लोकल कम्युनिटीज. ठीक है, हु आर प्रोटेक्टिंग, they can have the benefit of those forests. ठीक है. So answer is Arunachal Pradesh. So last question of the session is, of the estimated 47,000 plant species found in India that we did in the question number 1, about 15,000 flowering species belong to which category? So total fauna कितना है? total flora कितना अभी तक हमने estimate करा flora, that is 47,000. उसमें से जो फ्लोरा आपका जो है 15,000, उसमें से फ्लावरिंग जो स्पीशीज हैं दैट बिलोंग टू विच कैटेगरी? एंडेंजर्ड स्पीशीज, एक्सटिंक्ट स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज. सो एंडेंजर्ड दोज हु आर व्हिच आर ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जो खत्म होने वाली हैं. एक्सटिंक्ट जो खत्म हो चुकी हैं. एंडेमिक जो उस पर्टिकुलर एरिया पे ही हैं, जो कहीं और नहीं पाई जाती. ठीक है. सो उसी एरिया पे मैक्सिमम आपको मिलेंगी, कहीं और वो कम मिलेंगी. दोज आर एंडेमिक. वल्नरेबल जो एंडेंजर्ड होने वाली है. ठीक है. सो फर्स्ट स्टेज आपकी होती है, जो बिल्कुल लास्ट स्टेज है, दैट इज ऑफ एक्सटिंक्ट. उससे पहले होती है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, उससे पहले एंडेंजर्ड, उससे पहले वल्नरेबल. ठीक है. और ये सारी किसकी कैटेगरीज हैं? दीज आर द कैटेगरीज, ग्रुप्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज. क्लियर. सो 15,000 जो फ्लावरिंग स्पीशीज हैं they belong to endemic species. Clear? So मतलब those species are endemic to particular area only. Clear? So answer to this question is C, endemic species. So this was the last question of the session. So learners, those who are doing either PG or UG degree from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. Apart from the classes, we are giving value-added notes to the learners. We are also helping the learners for their exam through Exampedia. A continuous support from professional mentors is there who are helping in completing and submitting the assignments for your career development, for skilling the personal and social development also. So you can reach us out on the number 7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.